Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thanks for joining me, and this reading is going to be on Abhishek and Manisha for this week. And I also want to tell you that I will not be able to bring these videos on a weekly basis. It is too much taxing for my energy. And yes, my channel is not really growing, and there is no if you see the likes on the videos, it's not even 20-30% like on the videos. कहने का मतलब है 2000 लोग वीडियोस को देखते हैं, 40 लोग आके वीडियो को लाइक करते हैं. जस्ट इमेजिन 19,500 लोगों ने जो वीडियोस देखा है, दे हैव नॉट गिवन द एनर्जी बैक टू द वीडियो. I cannot afford to bring these videos at the cost of my energy. Please understand. ये readings आपको पसंद आती है. If you appreciate this video, you will have to give the energy back to the video. I cannot afford anymore कि 2000 लोग मेरी energy लें और 40 लोग energy को वापस करें by liking the video. I will go on a deathbed. So, no matter what, I have been running this doing this reading at the expense of my energy for a very long time. Doing these detailed guidances, 10-layered guidances, एक घंटा का guidance, explaining you each and everything. आप लोगों को मज़ा आता है, आप लोगों को easy लगता है, but you have no idea the kind of work goes into doing this reading. Just look at the time, 1 घंटा, 40 minutes, 30 minutes. It's all my energy that is going into making these videos for you guys, to bring this clarity, to bring this accuracy. And on top of that, all the prediction comes true. You need a high quality positive energy to do these kind of readings. And if you are not ready to pay for this energy by an energy exchange, unfortunately, मैं बहुत ही प्यार से बोल रही हूँ, विनम्रता से बोल रही हूँ, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ कि मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ. आप मेरी एनर्जी ऑलरेडी देख सकते हैं, डाउन है. बहुत जल्दी, इफ माई चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग एट ऑल, एंड आई डोंट नो हुज चैनल डिजर्व्स टू ग्रो. एक घंटे का वीडियोस टेलिंग यू अबाउट देयर द बर्थडे. I mean, I do all kind of creative stuffs for you people, but you people are not valuing my energy. You people are not valuing a good tarot reader that you have come across. No problem, I will vanish from your lives. And I go, I will not come back. ठीक है? तो there are no hard feelings. I am fine. In a spiritual journey, I have learned that it's always your lessons, and universe is always teaching you something through whatever is coming your way. Maybe it is time for me to walk away from all doing these readings, क्योंकि मैं अपने एनर्जी के एक्सपेंस पे तो ये नहीं कर सकती हूँ. And people who do just 1 minute का, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, शॉर्ट्स बनाते हैं वो लोग ऐसा, उनका चैनल इज ग्रोइंग लाइक 70,000 80,000 in 1 year. और यहाँ पे हर चीज़ करके दो, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करो, बर्थडे की रीडिंग्स दो, सोल लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लेन करो, कॉग्निशन एक्सप्लेन करो, रिलेशनशिप के इमोशंस एक्सप्लेन करो, ये करो वो करो, एक्सपेक्टेशंस बताओ, डायनामिक्स बताओ, साइकोलॉजी बताओ. हर चीज़ में एनर्जी लगती है भाई, हर चीज़ में एनर्जी लगती है. What am I getting doing all these readings? 2000 लोग वीडियो देखते हैं, 40 लोग उस वीडियो को लाइक करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड द एनर्जी डेफिसिट दैट यू पीपल आर क्रिएटिंग? सौ बात की ये बात है कि येस ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग दिस वीडियोज, है ना. तो नो हार्ड फीलिंग्स, बट या दैट इज व्हाट इट इज. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Abhishek and Manisha for the relationship for the coming 2 weeks. What is that the fans can know? Thank you so much.
Six of Wands. Let's see what else can we get. Abhishek and Manisha. Abhishek and Manisha. Ace of Cup. Eight of Wands रिवर्स में. ये तो शफल करते वक्त भी हमने देखा था. बैक ऑफ द डेक में क्या है? वाओ, ये वाला कार्ड भी देखा था हमने, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. बैक ऑफ द डेक में ये आया है. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? अभिषेक एंड मनीषा. देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, ये दोनों ब्लॉक्ड है, ये अपराइट है. यहाँ पे लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग होने की आसार लग रही है. एक्सक्यूज मी, एंड अगेन इट इज़ नॉट वर्किंग आउट. इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट इज़ गेटिंग स्ट्रक. तो यहाँ पे कुछ नया बिगनिंग ऐसा लगता है कि आ सकता था रिलेशन. इस आने वाले 2 हफ्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ एक नई सुखबुगाहट हो, दोस्ती करने की कुछ ऐसी हो. लेकिन ये जो भी नई एनर्जी हो रही है, एक नई शुरुआत यूनिवर्स लेके आना चाहता है, या फिर ये करना चाहते हैं, या यूनिवर्स की तरफ से ही है, क्योंकि ये हाथ तो क्लाउड से आ रहा है. तो एक यूनिवर्स ऑफर कर सकता है कि एक नई शुरुआत हो रिलेशनशिप में, एक नया फिर से स्टार्ट करो, कुछ बेटर हो. एक डेडलॉक जो क्रिएट हो गया ठीक हो. लेकिन यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, और यहाँ पे देयरफॉर क्योंकि वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं ये दोनों अपने डिफरेंसेस, तो यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है. इस तरह की एनर्जी लग रही है. जिया और अभिषेक की भी एनर्जी कुछ इसी तरह से सिमिलर है. अब मैं क्लैरिफायर्स निकाल के देखती हूँ कि इफ़ वी कैन गेट सम मोर क्लैरिटी. Dear angels, can we please have a clarifier for these cards? Thank you so very much. Okay, Two of Pentacles, Tower का कार्ड, और यहाँ पे है Lovers का कार्ड रिवर्स में है. यहाँ पे ये है, ये क्या हो रहा है? पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है. देखो यहाँ पे ये पेज कप को नहीं उठा रहा है. ये जो ऑफर मिला है कप का, यहाँ पे पेज नहीं उठा रहा है. इसी तरह की कुछ रीडिंग्स वहाँ पे भी है शायद. यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने के लिए शायद न्यू बिगिनिंग्स तो आई है. जो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस हो गए थे, अलाइनमेंट नहीं था, इधर उधर हर चीज़ हो गई थी, उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग आई है कि सब चीज़ ठीक हो जाए. बट यहाँ पे तो टावर का कार्ड आया है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं. और यहाँ पे क्योंकि वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं अब लोग अपने डिफरेंसेस. देखो अभिषेक और मनीषा के रिलेशनशिप में आपको याद है एक टावर का कार्ड काफ़ी बार आया है मेरे गाइडेंस में. तो ये जो जिस चीज़ के कारण इनके रिलेशनशिप में दरार आई है ना, प्रॉब्लम्स आए हैं ना, उसको रिले के कुछ ऐसी पहल हो सकती है यूनिवर्स के तरफ से, जहाँ पे ये बैठ के मैटर पे वर्कआउट करके, जिसके कारण इनके बीच में इन दोनों के रिलेशनशिप में जिस मैटर को लेके, जो कि बड़ा मैटर था, उसको लेके जो दरार आई है, उस पर ये लोग डिफरेंसेस अपने वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप फिर से ठीक नहीं हो रही है, और यहाँ पे ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो इसी तरह की एनर्जी है. हालांकि ये कमिंग एनर्जी है. अगर ये बिगनिंग पे काम करते हैं, अपने डिफरेंसेस जो एक मेजर चीज़ के कारण इनका जो ब्रेक डाउन हुआ था रिलेशनशिप, उसको वर्कआउट करते हैं, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं. क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे बिगनिंग लेके आया है, यूनिवर्स ग्रोथ भी देगा अगर ये अपने कर्मास करें इसके प्रति. अगर नहीं करोगे तो फिर चीज़ें नहीं होंगी. इट्स एज सिंपल दैट. अगर आपको ही न्यू बिगनिंग नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, द यूनिवर्स कैन नॉट हेल्प, फैंस कैन नॉट हेल्प, टैरो रीडर्स कैन नॉट हेल्प, नोबडी कैन हेल्प. यू ओनली हेल्प योर सेल्फ. तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है ना, जो रिलेशनशिप में ऊपर नीचे हो गया था, चीज़ें नहीं हो रही थी, एक मेजर इशू है उनके बीच का, उसको सॉर्ट आउट करना है. अब यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हुए लग तो नहीं रहा है कि हो रहा है, बट अगर करेंगे तो ठीक होगा. ये एनर्जी चेंज होगी, ये फ्यूचर की एनर्जी है. तो ये उनका गाइडेंस हो गया. ठीक है, ऑल राइट. तो अब हम देखते हैं कि अभिषेक का गाइडेंस क्या है मनीषा के लिए.
राइट, अभिषेक का गाइडेंस मनीषा के लिए क्या है? क्रिएटिविटी है. Let your imagination soar. Stay open to creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. यहाँ पे प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है, कोई मेहनत करके काम करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. तो यस, बी ओपन टू क्रिएटिविटी. एस ऑफ कप इज अबाउट क्रिएटिविटी. यस, आप जो भी डेडलॉक आपके रिलेशनशिप पे हो गई है, जो भी एक चीज के कारण रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ है, आप क्रिएटिव वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, विच इज ओके. गोइंग विद द रीडिंग. बंदी के लिए, मनीषा के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है अभिषेक के लिए? What is that? She needs the guidance. Yeah. इसका आ रहा है सरेंडर योर एडिक्शन. और शायद यहाँ पे एडिक्शन का मतलब क्या है? आप कुछ चीज एक्सेस कर रहे हो. एडिक्शन, कुछ चीज ज्यादा कर रहे हो. Whether you are addicted to substance, food, people, or it could even be overthinking or thought, take action to begin to heal the addiction and take action to begin to heal the addiction and replace it with a healthy affirmation. ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आ रही है. यूनिवर्स दे रहा है इनको मैटर को सॉर्ट आउट करने का, अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने का. पर एडिक्शन से आप बोल सकते हैं कि हम एक ही जगह पे फोकस्ड हैं, यानी कि हम इस पे ही फोकस्ड हैं. तो जब तक आपका जहाँ पे फोकस रहेगा वैसी ही चीज़ें आपको मिलेगी. इफ़ यू आर, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फोकस इज व्हाट इज माई वीकनेस, तो आपको वीकनेस ही पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल कीप आस्किंग व्हाट इज द वीकनेस ऑफ दिस पर्सन और व्हाट इज द बैड इन दिस पर्सन, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो आपको वही आंसर्स मिलेंगे. लेकिन इफ यू आर लाइक हाउ आई कैन इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप, तो आपको बेटर आंसर्स मिलना स्टार्ट करेगा. तो कहने का मतलब है कि कहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं. क्या आपको रिलेशनशिप ठीक करनी है, तो आपको पर्सपेक्टिव भी चेंज करना पड़ेगा. एक ही तरफ से सोचोगे एक ही रिजल्ट मिलेगा. अगर उसी जो चीज़ बिगड़ी है उसी के बारे में सोचोगे तो वही चीज़ मिलेगी. तो वो चीज़ें हैं. चलो ठीक है, अब हम ये वाला गाइडेंस लेंगे. हो सकता है कि ये पास की चीज़ों को भूल नहीं पा रही है, उसी पे फोकस्ड है, जिस कारण से रिलेशनशिप में दरार आया होगा. ऑल राइट, अब बंदे के लिए गाइडेंस देख लेते हैं. बंदे के लिए गाइडेंस क्या है? बंदे के लिए गाइडेंस क्या है? एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ, बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है. ठीक है, ये गाइडेंस आ रहा है इसको. बंदी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? ओके, मदर हीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों. एज यू आर फीलिंग टूवर्ड्स योर मदर हील, योर डिजायर मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली. सो या, मदर हीलिंग, वाई शुड दिस बी? आई डोंट नो, मे बी यू पीपल नो समथिंग, आई डोंट नो. बट यहाँ पे इसको अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, राइट? एंड like if you want to improve the relationship, go and talk, simple, like keep it simple. जो दिल में है वही बोलो. You know, life simple is good. So क्योंकि मैंने अभिषेक एंड जिया का भी ये कार्ड निकाला है, तो इनके लिए भी निकाल देती हूँ. Abhishek and Manisha, what is the guidance coming for their relationship from the angelic realm? Wow, boom, focus on here and now. And how accurate is that? फोकस ऑन हियर एंड नाउ. पास्ट में ही फोकस नहीं करना है. क्या चीज़ से रिलेशनशिप बिगड़ गया हो, तुमने ये किया है, नहीं मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ. एडिक्शन, यहीं पे फोकस्ड है. अगर आप पास्ट में फोकस रहेंगे तो चीज़ों को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, है ना? जो भी है लेसन्स लर्न करके, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए. Forgiveness is something that you do for yourself, not for others. And if you are not forgiving, you are getting blocked. Your abundance is getting blocked. Your prosperity is getting blocked.
विदाउट सेइंग योर पीस इज गेटिंग ब्लॉक्ड। तो वो चीजें हैं। फोकस ऑन हियर एंड नाउ, ये दोनों को ही अभी पे फोकस करनी चाहिए। और अभी पे, अभी क्या है, दिस इज पास्ट, दिस इज द क्लैरिफायर ऑफ दिस थिंग। तो अब पास्ट को लेके अभी अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं करोगे तो जो अच्छी चीज़ें यूनिवर्स लाना चाहता है वो भी तुम हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लेसन लर्न नहीं कर रहे हो, तुम फॉरगिवनेस का लेसन लर्न नहीं कर पा रहे हो अगर हायर लेवल पे जाएं तो या दैट इज व्हाट इट इज। Thanks for watching, guys, and if you like the guidance, please like, share, subscribe so that you can continue to get these videos. Bye for now.